السلام علیکم، میں ہوں اسما بیگ۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ پہلی ہی بارش اور کراچی فارغ۔ 20 سے 25 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی تیاری کا پول کھل گیا، کئی علاقے ڈوب گئے، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تک ڈوب گئیں۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ لانڈھی، گلشن حدید، بن قاسم، گلستان جوہر، کورنگی، یونیورسٹی روڈ، ایئرپورٹ، شاہ فیصل اور ملیر میں تیز بارش سے پانی جمع، کچرے کے ڈھیر، گٹر ابل پڑے، لوگوں کو شدید پریشانی۔ محکمہ موسمیات نے بدھ تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی، وقفے سے سلسلہ جاری رہے گا۔ بوندیں برستے ہی کراچی میں بجلی کا نظام ٹھنڈا پڑ گیا، مختلف علاقوں کی بتی گل کہ الیکٹرک نے بھی شہریوں کو خبردار کر دیا۔ بارش کے موسم میں کھمبوں اور ٹوٹی ہوئی تاروں سے دور رہنے کی ہدایت۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق غیر قانونی سٹریٹ لائٹس اور خطرناک سوئچز کے خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت پانی کی فی الفور نکاسی کو یقینی بنائے کہ الیکٹرک کی موبائل ٹیمیں بروقت امداد کے لیے مصروف ہیں۔ مونسون بارشیں شروع، کراچی میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی، مختلف نالوں میں کچرے کے انبار، صوبائی حکومت کے وہی دعوے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مونسون کے حوالے سے انتظامات میں تمام بلدیاتی ادارے ایک پیج پر ہیں، نالوں کی صفائی کا کام بلا تعطل جاری ہے۔ شہریوں کے مطابق 5 برسوں میں ایک باری حکام تصویری سیشن کے لیے نالوں کی صفائی کا کام کراتے ہیں۔ ایک طرف بارش کا پانی، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ کراچی کے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا، ہائی وولٹیج نے بھی بھاری نقصان پہنچایا، گھروں کا قیمتی الیکٹرانک سامان جل گیا۔ لانڈھی مانسیرا کالونی میں میڈیکل سٹور میں زیادہ وولٹیج کے باعث آگ لگ گئی، 1 کروڑ مالیت کی ادویات جل گئیں۔ تحریک انصاف کا کہ الیکٹرک کے باہر احتجاج۔ مونسون نے رنگ جمانا شروع کر دیا، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادلوں کے ڈیرے، لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، بہاول نگر، ہارون آباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ کراچی میں بھی بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی، شہر کا پارہ 40 ڈگری سے کم ہو کر 29 ڈگری پر آ گیا۔ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ پبلک، لیاری گینگ وار کے سرغنہ نے شہر قائد کا سکون برباد کیا۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے 198 افراد کو قتل کا اعتراف کیا۔ جی آئی ٹی میں 20 سے زائد دوستوں کے نام شامل، 16 رکنی اسکواڈ کا بھی ذکر۔ عزیر بلوچ نے قتل کی وارداتیں لسانی اور سیاسی بنیادوں پر کی۔ جی آئی ٹی رپورٹ میں عزیر بلوچ کے دبئی اور پاکستان میں غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا ملزم بیرون ملک فرار ہو گیا لیکن ماہانہ لاکھوں روپے بھتہ دبئی بھیجا جاتا۔ عزیر بلوچ نے ایران سے بوگس برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ لینے کا اعتراف بھی کیا، غیر ملکیوں کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ نے رکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق سانحہ منظم منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کا واقعہ تھا، 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کیس کو پہلے ہی دن سے اس طرح چلایا گیا جس سے ملوث گروہ کو فائدہ ہوا۔ تحقیقات کے دوران اندرونی اور بیرونی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ دباؤ کے زیر اثر پولیس نے کیس کو جانبدارانہ انداز میں چلایا۔ جی آئی ٹی نے سانحے کی نئی ایف آئی آر کاٹنے کی سفارش بھی کر دی۔
साबिक चेयरमैन फिशरीज के जराइम की भी लंबी चौड़ी कहानी GIT ने बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक निसार मोराई ने वाइस चेयरमैन फिशरीज सुल्तान कमर से महाना भत्ता लिया। 50 से 200 अफराद को घोस्ट मुलाजिमीन महकमा फिशरीज में भर्ती कराया। मुलजिम ने रिश्वत के एवज कब्जा माफिया की भी मदद की। जमीन के चालान पास करने की भारी रिश्वत ली। GIT में इंकशाफ किया गया, जुल्फिकार मिर्जा ने सरजानी टाउन में जमीनों पर कब्जा किया। DSP जावेद अब्बास और इंस्पेक्टर मुसद्दिक रफीक ने मदद की। मुलजिम ने एतराफ किया वो जुल्फिकार मिर्जा के कहने पर उजैर बलोच से कई बार मिला। जुल्फिकार मिर्जा ने आफाक अहमद को 2 बार 25-25 लाख भी दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ें या सब्सिडी दें, गरीब को आटा सस्ता फराहम करें। वज़ीर आज़म का आटे की पुरानी कीमतें फौरी बहाल करने का हुक्म। पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। सूबाई हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि आटे की कीमत पुरानी सतह पर हर हाल में बहाल की जाए। ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद सख्त किया जाए। पंजाब में 20 किलो आटे की कीमत 860 रुपए होगी। फ्लोर मिल्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान मामला तय। आटे के बहरान का खदशा टल गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिल्स को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। काबीना से आटे की कीमत में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जाएगी। मिलावट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। चीनी ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। माफियाज के खिलाफ कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फिर अज़्म। इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के इक़दामात पर इजलास। इमरान खान बोले गंदम की कम कीमत और बिला तातुल दस्तयाबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किसानों को जायज़ मुनाफे से महरूम रखा। आम आदमी को भी ज़ायद कीमत पर आटा खरीदने पर मजबूर किया। ये भी हिदायत की कि कोरोना से मुतासरा अफराद को रिलीफ की फराहमी में मुतहर्रिक किरदार अदा किया जाए। CPEC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मंसूबे मुल्क के लिए बहुत मुफीद हैं। वज़ीर आज़म का आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुआहदे की तकरीब से खिताब। कहा माजी में बिजली की पैदावार के लिए दरामदी तेल पर इन्हिसार किया गया। खुशी है कि अब पाकिस्तान में बिजली पानी से बनेगी। हमें चीन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। CPEC चीन और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती की मिसाल बनेगा। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं 4 अरब डॉलर सरमायाकारी और 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने के मुआहदे हुए। इन मंसूबों से 8000 अफराद को रोजगार मुयसर आएगा। आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 5 शहरी शदीद जख्मी, 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तिब के शोबे में पाकिस्तान मजीद खुद मुख्तार। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स तैयार। वज़ीर आज़म का हरीपुर में मुकामी सतह पर तैयार होने वाले वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन यूनिट का दौरा। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स NDMA के हवाले। वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम को मुबारकबाद। कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है कि हम नई तकनीकी जिद्दत पर खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाएं। हमारी हुकूमत नौजवानों की सलाहियतों को बुए कार लाने के लिए किसी भी इक़दाम की भरपूर हिमायत करेगी। PM ऑफिस के मुताबिक NRTC पाकिस्तान में अपने वेंटिलेटर्स बनाने वाला पहला इदारा बन चुका। सेफ वेंट SP100 वेंटिलेटर सस्ता, मयारी और आलमी इदारों से मंजूर शुदा है। 1,31,000 से जायद मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में सेहतयाब अफराद का तनासुब तेजी से बढ़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 3,344 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,31,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 50 अफराद की जिंदगियां भी चली गईं।
मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। लाहौर की मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। DHA, EME, वापडा टाउन, जोहर टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू, सुंदर में मरीज सामने आए। KP के 5 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कवानीन को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने माइंस एंड मिनरल एक्ट की मंजूरी दे दी। नए हज इक़दामात का ऐलान। नमाजों तवाफ के दौरान काबा को छूने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब इस साल हज के नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए। हज अस्वद को छूने पर पाबंदी भी होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। 19 जुलाई से मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में बगैर इजाज़तनामे के जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। चेयरमैन नैब का BRT केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। नैब का अहम इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का जायजा। जावेद इकबाल बोले, नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं। BRT केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में मजीद पेशरफ्त। अपोजिशन लीडर ने बीवी बच्चों से करोड़ों रुपए नकद तोहफे के तौर पर वसूल किए। नैब तहकीकाती दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने फैमिली मेंबरान से 10 साल में 4,27,40,000 रुपए वसूल किए। शहबाज शरीफ को रकूम उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। बैंकिंग रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। आइंदा समाअत पर साबिक सदर की मुतफरिक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। उधर सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वजीर आला मुराद अली शाह की नैब में पेशी से माजरत। जराये के मुताबिक मुराद अली शाह बुध को नैब में पेश होंगे। इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। हुकूमत नाकाम हो चुकी, वजीर आजम को अब जाना होगा। -1 नहीं, अब -160 ही होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार। कहा, मुईशत और निजाम तबाह करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान को घर भेजने के लिए किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। कराची में एक और एहतजाज। नर्सेज एक्शन कमेटी ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। एहतजाजी नर्सेज का सिंध हुकूमत से तनख्वाहें और रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। शाम को सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी सेहत ने मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी करवा दी। 2 दिन का वक्त मांगा। कोरोना मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ से तजावज़ कर गई। हलाकतें 5,40,000 हो चुकी। अमेरिका में एक ही दिन में 49,000 केसेस। भारत 7 लाख मरीजों के साथ दुनिया का तीसरा मुतासरा मुल्क बन गया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में लॉकडाउन मजीद सख्त। लोगों की रियासत से बाहर जाने पर पाबंदी। लातीनी अमेरिका में भी वबा बेकाबू। बरतानवी हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। लंदन की मारूफ नेशनल गैलरी भी खुल गई। यूरोप ने सयाहों के लिए सरहदें खोल दी। बेस फैसल पर 26, नाजिमाबाद में 22, लांडी में 3.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लांडी, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया और दीगर इलाकों में बिजली गायब। नशेबी इलाके ज़ेरियाब होने से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम।
शहर कायद में एक बार फिर रहमत इंतजामिया की नाअहली के बायस ज़हमत बन गई। कई रोज से जारी गर्मी से तंग शहरियों ने बारिश होने पर सुख का सांस लिया, लेकिन शहरियों की खुशी ज्यादा देर तक न रह सकी, क्योंकि सिंध हुकूमत और उसके मातहत इदारों की नाअहलियों और नाकामियों का सिलसिला गुज़िश्ता सालों की तरह अब भी जारी है, जिस पर शहरी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये हालात है एक बारिश के अंदर, और लिहाजा ज्यादा बारिश होगी तो फिर क्या हाल होगा। तकलीफ हो रही, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और गाड़ियाँ बंद हुई है पानी जमा होने की वजह से। हम तो अपील करते कि अभी KMC वाले, ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड वाले आ जाए, वो कुछ कर दे ताकि रोड खुल जाए। बरसाती नालों की बरवक्त सफाई न होने से कराची की बेशतर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जिससे शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड, राशिद मिनास रोड, कोरंगी रोड समेत कई शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना मोटरसाइकिल सवारों को हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का हालिया सिलसिला बुध तक बरकरार रह सकता है, जिसके दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। तफसील जानते हैं राहिल सलमान से। कराची में दोपहर के वक्त अचानक तुंद और तेज गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हुई, साथ ही काले बादल भी छा गए। फिर देखते ही देखते मॉनसून की पहली बारिश ने एंट्री दे दी। आंधी चलने और अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।